in the midst of the second chapter and 56 verses done. Gap of around 2 or 3 weeks. So let's have a fast recap of what we did earlier so that we get the flow of the chapter. 2.55 से आप start करना. Please try to read the translation. 2.55 what does it say? अच्छा 2.54 पढ़ो पहला, तो आपको सवाल क्या था मालूम पड़ेगा, नहीं तो सवाल ही मालूम नहीं पड़ेगा आपको. 2.54 कौन पढ़ेगा? लाउड एंड क्लियर. कौन माता जी पढ़िए. Yes, 2.54 Arjuna is asking, एक स्थित प्रज्ञ, how does he move around, how does he behave, how does he stand, how does he walk, मतलब उसके लक्षण. You cannot physically see, कितनी रोटी खा रहा है, कितने ग्लास पानी पी रहा है. That's not the actual literal meaning. The depth of it is you have to understand that what are the characteristic features of such a person. So for that Krishna gives a very nice first line explanation he gives. He says, Shri Bhagavan Vacha, Prajati yat kaman sarvan, Partha manogatan, Atmane eva atma tushtaha, Sthita pragya tad uchyate. He says, read the translation. Who can read the translation? The Supreme Personality of Godhead said, O Parth, when a man gives up all varieties of desire for self-gratification, which arise from mental commotion, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. So first point what Lord says here is giving away all varieties of sense gratification. So he says that is why Prajati yat kaman sarvan. He says sarvan. Why does he use the word sarvan? सिर्फ कामान मतलब हाँ थोड़े कामनाएं छोड़ता हूँ, थोड़े अपने लिए रखता हूँ, ऐसा नहीं. कामान सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़ना है. और कैसे है वो सब? मनोगतान है, मतलब ऑल फ्रॉम मेंटल कॉन्कॉक्शन. ऑल हैप्पीनेस इज ऑल टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज मेंटल कॉन्कॉक्शन. व्हाई इज इट बीइंग टोल्ड दैट इट इज मेंटल कॉन्कॉक्शन? Why it's mental concoction? Come on, Nikita Mataji. बोलिए. Nikita Mataji. We have got only one Nikita in our class. So it's a more, direct towards sense gratification. So it's like you end up the mind. Why Manogatan? The question is very specific. Manogatan, mental concoction. क्यों है? Cannot be controlled. Mental concoction. Sense gratification connected to the mind. Mental concoction of sense gratification. चलो, yes माता जी. हाँ, my God. इंद्रिय तृप्ति. हम सारे प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को भगवान बोलते हैं छोड़ दो उनको. और उनके पीछे इंद्रिय तृप्ति के पीछे का जो सुख है वो क्यों? मनोगतान, मतलब मन का कॉन्कॉक्शन, मन समझना, सेंस ग्रेटिफिकेशन. व्हाई? जो तीनों तापों से मतलब नहीं होता है. Others, please understand, all of you, please be understand one thing very clear. Mental concoction of sense gratification means what? आपको लगता है कि आज मैंने कर दिया तो मेरा ये इंद्रिय तृप्ति संपूर्ण हो जाएगा, और इंद्रिय तृप्ति कभी भी पूर्णता में नहीं होने वाला है. कभी भी आपकी इंद्रियां तृप्त नहीं होगी. हमेशा एक एग्जांपल देता हूं. इतने टन खाना खा लिया आपने, इतना टन पाव भाजी खा लिया है, एक शराबी रहते हैं, सब वैरायटी ऑफ दारू पीते हैं, तुष्ट हो जाता, हाँ आज आखिरी, ये आखिरी पैग है, नहीं आता. बिकॉज दैट इज वाई सेंस ग्रेटिफिकेशन थ्रू मेंटल कॉन्कॉक्शन इज वेरी डेंजरस. मन का कॉन्कॉक्शन को हिंदी वर्ड क्या है? व्हाट इज द करेक्ट हिंदी वर्ड फॉर कॉन्कॉक्शन?
ब्रह्म नहीं, मनगढ़ंत, यस। मनगढ़ंत विचार जो है ना कि यहाँ पे मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सोचना ही गलत है। तो ये दैट इज व्हाई ही इज सेइंग all sense gratification which are from mental concoctions, which arise from mental concoction, and when his mind is thus purified, जब वो इन सब गलतियों से या इन अभावों से जब साफ हो जाता है, and he is satisfied in the self alone, वो खुद में खुश है, तब वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ तद उच्यते, he is supposed to be. This is not the complete answer. Next verse, he continues with the next answer also, next line also. That is also another thing. Please read. 56, दुःखेषु अनविघ्न मन सुखेषु विगतस्परा वीतराग भय क्रोध स्थित धर्मुनि उच्यते. Yes. Not disturbed in mind, even amidst threefold mind space, or related when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger is called a sage of steady mind. Very good. One who is not disturbed amidst threefold miseries, and ना खुशी में ज़्यादा उड़े ना दुख में ज़्यादा गिरे. This we have studied in the last lecture. I am not going into the details of this verse. The reason is the next verse is somewhat similar to this. What is the next verse he is saying? यह सर्वत्र अभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभ न अभिनंदन्ति न देशति तस्य प्रजन परिस्थितः. What does this mean? He says in the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. So किसको ये समझ में आया? प्लीज एक्सप्लेन करें थोड़ा. तो अभी आप लोग पढ़ोगे, इतना दिन में पढ़ रहा था. एक्सप्लेन करो. बोले हाँ अभी पढ़ना पड़ेगा ना. यस राजेश बलसरा विल एक्सप्लेन नाउ. बोलिए प्रभु. Does Vishal not come? No idea. हाँ हाँ. You can understand this verse only provided you have understood the earlier two verses. पहले दो श्लोक अगर समझ में आएगा तो ही ये श्लोक समझ में आएगा. याद रखना भगवद गीता सब श्लोकास का कड़ी है. अब बोले नहीं प्रभु जी ये श्लोक समझ गया बस हो गया, आगे का पीछे का नहीं जानना है. नॉट पॉसिबल. अगर आप उसका पहले भगवान, क्योंकि भगवान इज गिविंग आंसर टू ए क्वेश्चन. व्हाट इज भगवद गीता? क्वेश्चंस बाय अर्जुन, आंसर्स बाय कृष्णा. और कृष्ण आंसर जब दे रहे हैं तो पहले लाइन जो बोला उसको समझे बगैर आप सेकंड लाइन कैसे समझ पाओगे? तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ही इज गिविंग इज लीव ऑल वैराइटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. सेकंड लाइन ही व्हाट इज सेइंग, दुखेषु अनविघ्न मन सुखेषु विगतस्परा. दोनों में don't get agitated. But यहाँ पे he is saying a higher level. What he is saying? He says in the material world, one who is affected by whatever good or evil. Now what is good and what is evil? Tell me. For a materialistic person, what is good and what is evil? Breaking the four elementary principles is evil. For a materialistic person, that is good, no? For a materialistic person, that is the prime purpose of his living this world itself is that. कि भाई कैसे, but that is इंद्रिय तृप्ति का हुआ. Now, हाँ. अच्छा कर्म मतलब अच्छा मिलता है अपने को तो अपन बहुत खुश होते हैं. हाँ. और थोड़ा भी कुछ खराब होता है तो अपन दुखी हो जाते हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. तो वो स्थिति प्रज्ञा कहलाता है. एक बात याद रखना माता जी. Let me read the Sanskrit part. Then आप लोगों को English has its own limitations, and Sanskrit we understand Sanskrit much better. सर्वत्रान
अभिस्नेहास, अभिस्नेहास मतलब बिना अटैचमेंट के, बिना स्नेह के, स्नेह के बगैर, स्नेह मीन्स स्नेह लगाव, अभिस्नेह मतलब बिना लगाव के। जो व्यक्ति शुभ अशुभ, ना व्हाट इज शुभ एंड अशुभ, इज गुड एंड इविल बोल दिया है, बट अब हम लोग शुभ और अशुभ को कैसे समझेंगे? इफ यू रीड इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन, यस इट कम्स एज गुड एंड इविल, बट शुभ अशुभ सिर्फ गुड एंड इविल है क्या? ये कार्य शुभ होता है, ये कार्य अशुभ होता है। ऑन व्हाट बेसिस? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया धंधे के लिए निकला और सामने बिल्ली ने रास्ता काट लिया, या ऑफिस के लिए निकला या जो भी ना, यहाँ पे शुभ अशुभ की परिभाषा अलग हो गई। और यही अगर आप भक्ति के हिसाब से आप निकले हो, लेट्स से आज सुबह मंगला आरती के लिए निकले हो और बराबर एक बिल्ली रास्ता काट लिया, अब ये अशुभ है शुभ है, doesn't matter. So when it is connected to some of your personal gains, और जब आपके खुद के फायदे के लिए आप सोच के करते हो या अपना शारीरिक रूप में हो, तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाला है। जब आप अपने आप को एक क्या बोलते हैं, बॉडी को when you consider when you are on the bodily level, what do you say for Hindi? हाँ, शारीरिक स्तर पे आप जब तक शारीरिक स्तर पे हो तब तक आपको शुभ और अशुभ होता है। और एक बार आप समझ गए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं सिर्फ एक शरीर में घूम रहा हूं, एक शरीर मिला है, लिव ऑन लाइसेंस का एक भाड़े का जगह मिला है जो एट द टाइम ऑफ डेथ मुझे छोड़ना है, तब योर वे ऑफ आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ चेंजेस कंप्लीटली। तो शुभ अशुभ। नाउ हियर अगेन another question is abhisneha, without attachment. We are all attached. When first attachment is this is my body. बॉडी का अटैचमेंट से सब स्टार्ट होता है। What is the first reason why we have this attachment towards body? What is the first effect what we have because we are attached to this body? Everything connected to the body, जो इस शरीर के साथ संबंधित है, वो चीज का शुरुआत जब आप अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ के देखते हो तब उससे शुरुआत होती है। जैसे कि मैं एक शरीर, मैं एक आदमी हूँ, ओ ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माँ हैं, ये सब आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? जब अपने आप को आप इस शरीर के साथ अटैच करके या कनेक्ट करके या जोड़ के देखते हो। जब इस शरीर के साथ आप जोड़ोगे नहीं तब आप क्या सोचोगे? ओके फाइन, he is also a soul, I am also a soul. But as long as you are connecting with this body, all things come. And not only this, along with that, other most important thing, your happiness and distress also comes. Unless and until, always I give this example, I am giving it once more. For example, आपने घर पे मुझे बुलाया है, लेट्स से आपने मुझे घर पे, प्रभु जी आइए आप सुबह नाश्ता हमारे घर पे, चलो ठीक है, आपके घर पर नाश्ता खाने आ गए और हॉल में बढ़िया टीवी में न्यूज़ लगा हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट 25 लोगों की मौत। क्या है? ट्रेन का एक्सीडेंट 25 लोगों की मौत। प्रभु जी देखो कलयुग आ गया है, सब जगह ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ बराबर। तो क्या लेंगे प्रभु जी आप? गरम बनवा दूँ, डोसा बना दूँ, इडली बना दूँ, जो भी है। हाँ लाइए, भूख तो लगी है, लेके आइए। प्रभु जी आधा न्यूज़ वाले सच्ची नहीं बोलते हैं, 50 नहीं 100 मरे रहेंगे लोग, ऐसे 25 या 50 बोलते रहेंगे, एक्चुअल में तो 100 लोग मरे। अच्छा ठीक, और फिर एक कहानी बता रहे हैं न्यूज़ पढ़ रहे हैं। प्रभु जी और लीजिए। इफ यू आर रियली सैड, अगर आप वाकई में दुखी हो, वहां 50 लोग मर गए या 25 जो भी मरे या 5 मरे, 1 मरा तो भी मरा। और यही अगर आपके कोई संबंधी, घर के कोई
हॉस्पिटल में एडमिटेड है, कुछ नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, या शुगर बढ़ गया तो एडमिटेड है हॉस्पिटल में। आप पूरा दिन परेशान हॉस्पिटल में, कितने बार खाओगे? नहीं प्रभु जी, सुबह से खाना ही नहीं खाया, मन ही नहीं कर रहा है खाने का। अरे उस दिन तो 25 लोग मर गए थे बुला बुला के, प्रभु जी और थोड़ा लीजिए, थोड़ा और लीजिए, नमकीन तो आपने लिया ही नहीं है, मिठाई तो आपने ली ही नहीं है, वो छोड़िए प्रभु जी, ये सब सच्ची नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग मर गए, आप लीजिए। क्यों? यहाँ पे हमारा कोई संबंध नहीं था, वहां हम गटक गटक के समाचार को देख रहे थे। मगर आज जब परिवार का कोई व्यक्ति, सिंपल ही रीजन, नॉट ए मेजर रीजन, कोई जीवन और मृत्यु का जंग नहीं लड़ रहा है, फिर भी आप क्या बोलोगे? अरे प्रभु जी खाना ही नहीं जा रहा, पेट में खाने को मन ही नहीं कर रहा है। और कोई आके बोल दे, अरे सुबह से कुछ नहीं खाया, अरे तुझे खाने की पड़ी है, यहाँ सो एंड सो बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में, तुझे खाने का मन कर रहा है। व्हाट अ रैडिकल चेंज। व्हाई डज दिस रैडिकल चेंज कम्स? नेवर शो योर फीट टू द लॉर्ड। When the radical change comes, it comes only when there is connection to yourself. When you identify yourself as a body, then this is my father, this is my mother, my grandfather, my children, my wife, everything comes. My friend, everything comes. And everything comes in a, and हम लोग, हमारा जो भी सुख दुख है या जो भी संबंध है, अभी स्नेहा का मतलब समझा रहा हूं मैं। ये स्नेह का मतलब क्या है? स्नेह नाम का चीज ही नहीं है। आचार्य क्लियरली सेज देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज लव इन दिस वर्ल्ड। प्यार नाम का चीज ही नहीं होता है। इट इज ओनली यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। समवन लूजेस हिज वाइफ और समवन लूजेस हस्बैंड, हाय, शी डजंट क्राई बिकॉज ही हैज डाइड, शी क्राइज बिकॉज आगे मेरा क्या होगा। I'll tell you one true story from what acharyas I've heard. Once, एक अच्छा लड़का था, एक गुरुजी के पास जाता था हमेशा और वहाँ जाके सेवा करता था। कभी गोबर उठा लिया, कभी गाय का घास खिला दिया, कभी रसोई घर में घुस के खाना बना लिया, कभी किसी साधु का, वृद्ध साधु का पैर वैर दबा देता था, सेवा करता। एक दिन अचानक से उसके घर वाले पिताजी बोलते थे, अरे काम धंधा पे लग जा। ज़्यादा बोलने को डरते थे, अगर ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं साधु बन गया तो साधु के पास जाते हैं, बेटा जाते हैं, माँ बाप को टेंशन बढ़ जाता है। आजकल बेटा बियर बार में जाएगा तो माँ बाप का टेंशन नहीं बढ़ता है, मगर साधु के पास जाते हैं टेंशन बढ़ जाता है, कहीं साधु बन गया तो। इसके लिए कहीं कहीं बड़े भी तो नहीं आते हैं साधुओं के पास। तो एक बार उसके पिताजी ने बोला, चलो इसका शादी करा देगा। शादी करा देगा तो घर में एक खूबसूरत बहू आएगी, तो उसके चक्कर में साधु का चक्कर छोड़ देगा। हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, छोटा सा बच्चा हुआ, जीवन चल रही थी। फिर धीमे धीमे, महाराज जी मेरे परिवार के लोग मेरा जान खा रहे हैं। मैं बोला, तो साधु ने बोला, देखो ये परिवार के लोग कोई तुम्हारे प्रिय नहीं है, सब नकली है। बोला ऐसा? हाँ, तेरे को दिखाता हूँ। तो ऐसा भी मेरे पास आता था, तुझे इतना योगा सिखाया मैंने, किस दिन काम आएगा। एक दिन है, 1 घंटे के लिए सांस रोक के खड़ा हो जाता बस। तो ये सांस रोक के लेट गया, डिक्लेयर्ड डेड। सब लोग हाय तौबा रोने लगे। गुरुजी को भी बुलाया गया, भाई गुरुजी को बोलो तुम्हारा चला गया बोल के। तो गुरुजी भी आया, हाय चला गया। गुरुजी कैसे हो गया, ये अनर्थ हो गया। बीवी छाती पीट पीट के रोई है, माँ छाती पीट पीट के रो रही है, बाप बेचारा 2-3 बार बेहोश हो गया। सब ठीक है, सब कॉमन है ऐसी परिस्थितियों में, ये ऐसा कॉमन होता है। तो बाबा जी बोले, ठीक है एक काम करो, मेरे पास एक पुड़िया है, एक मंत्र है जिससे मैं उसको जिंदा कर सकता हूँ। तो उसने उठाया, अपना कमंडलू रखा, उसमें एक पुड़िया डाला, तो अंदर बुड़ 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 करके आने लगा आवाज़। बोला अब ये पानी पूरा पोटेंट हो गया है, अब जो भी इस पानी को पिएगा उसको अपना प्राण त्यागना पड़ेगा और सामने ये व्यक्ति का प्राण वापस आ जाएगा। तो अभी आप लोग में से कौन प्राण त्यागने को तैयार है? तो पहले तो जितनी छाती पीट पीट के रो रही थी अम्मा,
तो अम्मा को पूछा, अम्मा वाटर फॉर यू? तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, क्या है, मैं तो एकदम पतिव्रता नारी हूँ और मेरे पति अभी तक जिंदा हैं, तो बेटे का पिता जिंदा है, तो मुझे अब उनका सेवा करना है, तो अनलेस अंटिल आई डोंट सर्व हिम हाउ इज इट पॉसिबल? तो मुझे मरते दम तक उनका सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तो मैं पी के कैसे मरूंगी, फिर उनका सेवा कौन करेगा? अच्छा, तो कमंडल रखा गया उसके पिताजी के सामने। पिताजी बोला, देखो बेटा तो गया, जो जाना था जा गया, अब क्या करूं? अब मेरा एक कर्तव्य है, इस पोते को ही बड़ा करूंगा, उसका लालन पोषण करूंगा और इसको कम से कम अच्छा बनाऊंगा, इसके ऐसा निकम्मा नहीं बनाऊंगा, साधु संतों के चक्कर में घूमता था, ना घर का काम कुछ करता नहीं था, हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो इसका पोते को मैं बड़ा करूंगा। बोला ठीक है, पत्नी के पास रखा, तो पत्नी बोली, और पत्नी का ताव अलग था, पत्नी बोली आप लोग दोनों प्राण त्यागने को तैयार नहीं हो, हाँ पोते को आप क्यों बड़ा करोगे, मैं पोते को बड़ा करती हूँ, और रही बात आप क्या सोचे, ये जिंदा हो जाएगा, मैं पी के मर जाऊंगी, इसकी दूसरी शादी करोगे, मेरा क्या कमी है, मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ, आपको क्या तकलीफ है? तो पति ने बोला मैं भी नहीं, मैं जाऊंगी, मेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं, अच्छा पोषण करेंगे, मेरा और बच्चे का अच्छा पोषण करेंगे, मैं वहाँ जाके रहूँगी। तो अब सब होने के बाद अब बोले, बाबा जी बोले ठीक है, अब लगता है मुझे ही पीना पड़ेगा। तो हाँ बाबा जी यस, ऐसा भी आपके आगे पीछे रोने वाला तो कोई है ही नहीं, हाँ। और साधु संत काम कब आते हैं? ऐसे मौके पे तो साधु संत काम में आते हैं, आप पी लो। तो साधु महाराज ने पी लिया, थोड़ा एक्टिंग किया, 2 मिनट के बाद हाथ फेराया लड़के पे, लड़का भी उठ के खड़ा हो गया। बट दो दिस में साउंड एज ए जोक, दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन की ये सत्य यही है। एक पति मर जाता है तो क्या पत्नी टीवी देखना छोड़ देती है? क्या जीवन जीना छोड़ देती है? महीना 2 महीना में वो भी किसी मस्त टीवी के सामने बैठ के कोई कॉमेडी सीरियल या कॉमेडी मूवी देख के हंसती रहेगी। जीवन कभी किसी के लिए ना रुका है ना रुकेगा आगे। लाइफ इज पेरिनियल। These are all attachments which come from mental concoction, because we are considering ourselves as a part and parcel of our body, not a part and parcel of God. We are actually what? We are part and parcel of God, but we are attached as part and parcel of body. मैं मेरी गाड़ी को ठोका, मेरे गाड़ी को स्क्रैच हुआ. When I consider myself body, then my attachment to the car comes, then my attachment to my gold comes, then my attachment to my other worldly things comes. This is my property, my land, my money, mine. I and mine. इसी चक्कर में व्यक्ति का पूरा जीवन. So where is the question of that person becoming स्थितप्रज्ञ? स्थितप्रज्ञ मतलब जो अपने आप को एक आत्मा आइडेंटिफाई करता है. He is, that is the first quality of a स्थितप्रज्ञ. क्या I am this soul, and a soul is a part and parcel of the Lord. I am not this body. आज मैंने एक पुरुष का शरीर लिया है, अगले जन्म में क्या पता, अगर मेरे कर्म ऐसे हो तो मुझे एक स्त्री का शरीर भी मिल सकता है या एक पशु का शरीर मिल सकता है. पशु में भी नर या नारी का शरीर मिल सकता है, एक पक्षी का योनि में जा सकता हूँ, कोई भी योनि में गुजर सकता हूँ, भटक सकता हूँ. बट what is the use? This is what one has to understand कि भाई ये these are of no use, these worldly connections are of no use. That is why he says यत् सर्वतान अभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभ तत् तद. जब बिना स्नेह बिना अटैचमेंट का जो भी शुभ अशुभ आता है उसमें ना नंदनती, ना उसमें हर्ष लेता है, ना द्वेषती, हाय हाय बुरा हो गया. वॉट एवर हैपन्स वेरी गुड इट हैपन्स.
जो हो रहा है अच्छे के लिए हो, बिकॉज आवर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रारब्ध कर्मा। आप जो भी सुख या दुख भोग रहे हो, आपका खुद का कमाया हुआ सुख या दुख, इट इज फ्रॉम नो वंस अकाउंट यू आर गेटिंग। हम बोल सकते हैं हाँ इनके वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं, सब पहले के जमाने का लेन देन चल रहा है। एंड दिस ऑल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज दिस बॉडी एग्जिस्ट। द डे दिस बॉडी इज ओवर, जो उनका पीड़ा, जो आप उनको जो पीड़ा दे रहे हो या उनसे आपको जो पीड़ा हो रही है, वो भी उसी वक्त खत्म हो जाती है। So, is it possible to live such a स्थित प्रज्ञ लाइफ? पॉसिबल है? नहीं प्रभु जी, आपका कथा तो बहुत अच्छा था, सुन लिया, अब जीवन में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए हम प्रसाद खा के घर जाते हैं, कोई मतलब नहीं ना। Tell me, is it possible? Because this is a scientific class. I don't take theoretical things. Yes, Pradeep, बहुत ज्ञानी लग रहा है, बोलो, पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ प्रभु जी, नॉनवेज नहीं छूट रहा है, आप उसका बात कर चाय नहीं छूट रही है, नॉनवेज नहीं छूट रहा है, आप स्थित प्रज्ञ बोल रहे हो मुझे। उसका आंसर नेक्स्ट श्लोका में है, डोंट वरी, लॉर्ड इज गिविंग द आंसर नेक्स्ट श्लोका। हाँ, हु कैन गिव मी दिस आंसर? इज देयर एनी एग्जाम्पल फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड स्थित प्रज्ञ का? कोई एग्जाम्पल आपके जीवन में कभी आपने देखा, किसी का कभी सुना? यस, चश्मा आंख में पहनोगे तो समझ में आएगा, सिर पे पहनोगे समझ आएगा। See, it is always say, Acharya is very say nicely. रामचंद्र जी का जो लाइफ स्टाइल है, वो किसके लिए उन्होंने ऐसे जीवन निभाया? हमको ऐसा जीवन निभाना चाहिए। और कृष्ण ने जो किया ना, वो करना नहीं चाहिए। जो रामचंद्र जी ने किया वो जीवन हमको निभाना चाहिए। और कृष्ण भगवान का जो लीला है ना, वो स्मरण करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए। और हम लोग बराबर उल्टा करते हैं। Yes, everyone is introducing रासलीला, 9 days रासलीला ही हो रहा है ना। What is happening? नवरात्रि means what? 9 days रासलीला ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है? Everyone wants to enjoy, and everyone thinks if Krishna is an enjoyer, why can't I enjoy? वो थोड़ा सा माखन चोरी किया तो उसको जेल में डाला, मैं थोड़ा सा किसी का पैसा चोरी किया मुझे जेल में डाला, मेरे भगवान चोर थे तो मैं थोड़ा चोरी क्यों ना करूं? प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड रामचंद्र जी's life, the way he lived his life is set up a true example that even if God wants, he can give you an example the way we have to live. तो रामचंद्र जी, when did he behave in this manner? one day उनका राज्याभिषेक होने वाला था। Yes. Next day he was given संन्यास। He had to leave everything. And not only leave, चलो तुम्हारा एक तो just imagine your promotion is cancelled or your big order is cancelled, how horrible you feel. तो imagine ये तो cancel हुआ तो हुआ, इसके अलावा जंगल में भी जाना है, इसके अलावा नेक्स्ट डे जंगल में जाना है। एंड उसको भी that day morning he comes to know. The day earlier night he is being informed that कल सुबह आपका राज्याभिषेक है, और अगला दिन सुबह उसको क्या कहा गया? आज राज्याभिषेक कैंसिल है, आपको जाना पड़ेगा जंगल में। How did he behave? ठीक है, he was happy in that context also and he was happy in this context also. इधर भी खुश थे, वहां पे भी खुश थे। Because if you take Ramchandra ji, he was trying to exhibit these qualities for human beings to follow.
we are supposed to follow. What does, I have given one lecture on positive thinking. The positive thinking also I have said the same thing. We generally talk about positive thinking. What is positive thinking? There is nothing called positive thinking. The perfect example of positive, कोई लोग बोल नहीं प्रभु जी अब क्या है मेरा धंधा हो नहीं रहा है, but I am very positive, कभी ना कभी तो होगा. But this is not positive thinking. Accepting the fact, whatever the ground situation is, accepting the fact and then taking it in the positive sense. Suppose someone starts some new business and it doesn't pick up that well. प्रभु जी भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान मैं ये किया वो पूजा किया सब किया. अरे पॉजिटिव थिंकिंग इज दैट देयर मस्ट बी सम हायर रीजन व्हाई गॉड इज नॉट पिकिंग अप माय बिजनेस. माइट बी आई मे गो इनटू बिग लॉस, मल्टी करोड़ लॉस. ये तो ठीक है 5-10 लाख से ख़त्म हो गया, ये तो बड़ा नुकसान हो सकता था. सेकेंडली वन में थिंक नहीं शायद मैं बहुत बहुत अच्छा कमा लेता मगर इसके बाद मैं भगवान से दूर हो जाता. सो डोंट फेलियर को आप पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये नहीं सोचना है इस फेलियर को मैं ओवरकम करूंगा, किसी भी हालत में ओवरकम करूंगा. दैट इज नॉट इज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज इफ अ सिचुएशन गुड और बैड दैट ना द्वेषति ना कांक्षति ना you don't get elated also, you don't get disheartened also, because what has come in due course of time it will go also. If it doesn't go at the time of death it will be taken by force. by force आपसे छीना जाएगा, आप चाहो ना चाहो. इससे अच्छा पहले अक्लमंद व्यक्ति क्या है, पहले दे देना अच्छा है ना, पहले दे दो. नहीं तो at the time of death, hey come on, your gold jewelry is in the locker, your car is in the parking lot, your house is in the building, and what else, what property you got, what else you got, all the cash lies in the bank. What are you going to do? कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते. And this is a fact. But what is illusion? Illusion means नहीं प्रभु जी अभी तो नहीं है ना, अभी तो मेरे हाथ में everything is in my control. वो दिन आएगा तब देखा जाएगा, और वो दिन कभी however old you are, you will always feel you are young because the soul is ever young. हमेशा आत्मा जो है वो नव यौवन है और आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं है. That is why we always say this situation ना, that लोग मरते हैं बट हम लोग क्या सोचते हैं वो मरा मैं थोड़ी मरा. क्यों? हमको inherently we know we are not going to die, we are only going to change our body from one body to another. Okay, we go to the next verse where the secret of how to control this entire sense gratification process is mentioned. यदा समरते चायम कूर्मो नैव अंगानि इव सर्वसः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा परिस्थितः. Here Lord is giving an analogy, an example. कैसे अपने इंद्रियों को बाहर निकालना है या अपने इंद्रियों को एंजॉय कैसे करना है. And what is saying? One who is able to withdraw his senses from sense object, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in a perfect consciousness. Here Lord is giving example of a कूर्मः. कूर्म मतलब टॉर्टोइस, कछुआ. कछुआ क्या करता है, जब जरूरत है अपने हाथ पैर निकालेगा, अपना मुंडी बाहर निकालेगा, काम हो गया सब अंदर लेके गपचुप बैठ जाएगा. तो हमारी इंद्रियां भी ऐसे ही है, कंट्रोल में तो आएगी नहीं, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा. आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी वंस अगेन, आई टेल दिस स्टोरी. एक बार एक राजा घोषणा किया जो मेरे बकरी को संतुष्ट करेगा उसको 1 लाख सोने की मोहरें. तो सब लोग निकले, हाँ अरे बकरी को क्या पूरा दिन चरा देंगे, संतुष्ट हो जाएगा, पेट भर जाएगा, चुप बैठेगा. तो चराने के लिए लेके गया था, शाम को लेके आया, महाराज आपका बकरी संतुष्ट हो गया. और तुरंत अच्छा मेरा बकरी संतुष्ट हो गया. पेड़ में से एक डाली तोड़ेगा, 4 हरी पत्ती दिखाएगा ऐसे,
और बकरी तुरंत खाने को भाग के आती थी। तो जैसे आएगी क्या बोलेगा, व्हाट इज द यूज, तुमने कहाँ संतुष्ट किया, संतुष्ट किया हुआ व्यक्ति आएगा नहीं खाने के लिए। तो ये जब भी कोई आता था ट्राई करता था, यही रात को टेस्ट किया था, एक डाली तोड़ना, बकरी के सामने दिखाना, बकरी बात क्या आएगी, खाएगी उस पत्ते को, तो क्या फायदा, कहाँ संतुष्ट किया तूने। एक साधु आएगा ऐसे, मैं अब इसको संतुष्ट करता हूँ। सुबह सुबह आया, बकरी को साथ में लिया और पूरे हरे भरे घास के खेत में लेके गया। बकरी खाने के लिए दौड़ी, सटैक डंडे से मारा। जब जब बकरी खाने जाती थी उसको डंडे से पीटता रहता था, कंटिन्यूस पीट रहा है पीट रहा है पीट रहा है, परेशान बकरी। घास के पास गई तो मार खाया, घास के पास गई तो मार खाया। अब क्या करें, कैसे करें, बकरी भी परेशान। उसको एक चीज समझ में आया कि अगर मैं घास कोई भी चीज खाने गया तो ये मारेगा। थोड़ी देर बाद, शाम के बाद उसने पेड़ की डाली तोड़ी, बकरी को दिलाया। बकरी बोला आज चेंज ऑफ टेस्ट, चलो वो खाने जाता हूँ, पटाक वापस। रात को लेके गया, पूरा दिन बकरी भूखा, पूरा दिन बकरी भूखा। शाम को लेके गया, चलो महाराज आपका बकरी संतुष्ट हो, एकदम संतुष्ट हो गया। अच्छा देखता हूँ, डाली निकाला, तोड़ के दिखाया, बकरी ऐसे आगे गई, घूम के देखा, उसके हाथ में डंडा था, महाराज के हाथ में। बोला वापस, ये पूरा दिन मार खाया, अब और मार खाने की ताकत नहीं है। It didn't eat. So whether the Raja was there or not, whether Bakri was there or not, please understand one thing, that अगर इंद्रियों को काबू करना है तो आपको जबरदस्ती काबू करना पड़ेगा। नहीं तो आप आपके इंद्रियों को कितना भी छोड़ोगे ढीला, और आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी आज एक टाइम चाय पीता हूँ, प्रभु जी पूरा दिन चाय नहीं पीता हूँ, एक ही टाइम पीता हूँ, सुबह बस एक टाइम लगता है, बाकी चाय नहीं लगता है। What is the use? You have to become a, that is why you go to a spiritual master, why you go to a guru. गुरु का काम क्या है, हाथ में डंडा लेके सटैक मारना, that's the job. And why does he hit? It is for the betterment of yours. All of you all may go for dieting course, weight reduction course. करते क्या है in general, your experience, भूखा ही रखना है ना। आप क्यों अपने घर पे अपने आप भूखा क्यों नहीं रह सकते, वहां जाके पैसा खर्च करके भूखा क्यों रह के आना है, एंड दैट यू स्पेंड हेफ्टी अमाउंट, माइंड यू, हाँ, वो भूखा रहने के लिए। व्हाई कांट डू, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल अवर सेंसेस। अपनी इंद्रियों पे हमको काबू नहीं, ठीक है शाम को कम खाओ, अभी खा लेता हूं, अभी खा लेता हूं, शाम को कम खाऊंगा। अरे 3 दिन से बहुत खा लिया, कल तो एकदम ये करना है। एक टाइम तो आप किसे जो engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. This is the root cause why ISKCON में सबसे ज्यादा प्रसाद जाता है। क्या हो गया, what is the problem now? हो गया। So please understand one thing. अभी हमने एक दिन बोला था सबको चाय कॉफी नहीं पीनी है, कितने लोगों के दिल टूट गए, चाय कॉफी नहीं पीनी। सुबह उठेगी तलब उठती है, शाम को उठेगी तलब उठती है, क्या करें। तो उसके लिए वी हैव टू गिव हायर टेस्ट। तो हायर टेस्ट क्या होता है, जो चीज आप भगवान को ऑफर करके पी सकते हो वो हुआ हायर टेस्ट। सो व्हाट डिड वी मेक, वी मेड हर्बल टी। हर्बल टी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर caffeinated tea से herbal is better, but it is a stepping stone towards coming closer to God. It is not the बस प्रभु जी अटक गया हूं मैं, from normal tea I have come and stuck in herbal tea. No, it is a transit way, it is a transit process. जैसे आप कोई क्या कहते हैं एडिक्शन सेंटर में आप जाते हो, डी एडिक्शन सेंटर में जाते हो, आपका कोई एडिक्शन है, वो उस एडिक्शन से आपको दूसरा एक एडिक्शन में लगाना ही तरीका है, ना कि एडिक्शन को बंद कर दें। आदमी पागल हो जाएगा, he will behave like a crazy man.
So what does Lord say in this? निराहारस्य देहिनाम. अभी समझो कल से माता जी बोलेंगे प्रभु जी नॉन वेज और नथिंग, तो मैं बोलेगा माता जी नथिंग. कितने दिन भूखा रहोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन. और सपोज माता जी ने जबरदस्ती चलो भूख लगी है खिचड़ी खा रही हूँ, मन किस में है? नॉन वेज में है. वो टंगड़ी वो ये सब याद आता रहेगा एंड खाती रहेगी वेज, बट मन किधर रहेगा? उन चीज़ों पे लगा हुआ रहेगा. क्या वो व्यक्ति भक्ति कर पाएगा? कैन ही डू डिवोशन सर्विस? बिकॉज हिज माइंड इज अटैच्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. Be it be alcohol, be it be the opposite sex, be it be n number of things. A person who is attracted to his opposite sex, can he do devotion? He cannot do devotion. पहले के ज़माने के पिक्चर दिखते थे ना, उसमें किताब में भी उसको लवर दिखता था, ग्लास में भी लवर दिखता था. आई एम टॉकिंग ऑफ दिस 70s मूवीज. वो ऐसा लगता है कि कंस था, कंस को जैसा कृष्ण सब जगह दिखता था वैसे उनको सब जगह दिखता था. So the point what I am trying to make is निराहारस्य देहिनाम. It is not possible कि व्यक्ति निराहार रहे, भूखा मर जाएगा बट he cannot live. तो उसको आहार तो देना पड़ेगा but a higher taste. That is why we have got Govindas, a higher taste. Govindas, what is the tagline for Govindas? The higher taste. Because खाना तो है, बढ़िया खाने का तो मन है. So what do? We have Govindas, higher taste. So everything can have a higher taste. It is not just your clothing can have higher taste. You need not wear only a nice pant, shirt or mini skirt and this and that. You can wear nice gopi dresses. You can wear nice saris. So we have always got higher taste. And that is the only way that we can survive from this so-called depression of sense gratification. No, first verse, what does it say? You have to control your senses, but it is not possible. So that is what Prabhupada says कि आप जब कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कम से कम इन इंद्रियों को दूसरे काम में लगा लो. You want to wear a nice dress, you want to do a lot of makeup, you want to do nice dressing and go to a nice, make yourself looking beautiful and presentable, not a problem. But then do it for the Lord. Don't do it for the world. दुनिया के लिए कितना भी करोगे, दुनिया क्या बोलेगी? बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा ईगो है. दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकोगे. अगर खुश करना है तो भगवान को करो. भगवान तो इतने जल्दी खुश हो जाते हैं. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. सिर्फ पानी पिलाओ मैं खुश हो जाता हूँ. मगर उनको खाना कभी गलती से खिलाते नहीं हो आप लोग. और हम बाकी गेस्ट आएंगे, पड़ोसी आएंगे, हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, मगर भगवान को कितने बार खिलाते हैं. और भगवान तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम. पत्र खिला दो, एक पत्ता खिला दो, एक फूल दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा. और हम लोग क्या बनते हैं? हाँ भगवान ने बोला है ना, एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा खड़ी साकर रख के रख देंगे, ले भगवान तू खा, हम लोग हलवा पूरी खाएंगे. That is the problem. We have to dovetail. That is why Prabhupada makes this statement. We have to dovetail our senses, our desires to Krishna's desires. That is the way we can come out of this art of controlling our senses. नहीं तो इंद्रियां अपने आप में प्लीज भूल जाइए. बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए. एक पायल की आवाज सुनकर विश्वामित्र मुनि का तपस्या भंग हो गया. सिर्फ एक पायल का आवाज सुना तो जो 60,000 साल तपस्या किए विश्वामित्र मुनि, सो पावरफुल मुनि, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? So it's better that we do it by diverting it to a higher taste. Let's read the purport and we'll close the class. Please read the purport. Who will read purport? Shraddha Mataji will read or you will read? हाँ, अरे श्रद्धा माता जी पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं ना? Unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from the sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain type of eatables.
The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyana, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. But one who has tasted the beauty of Supreme Lord in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life, but such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna consciousness, he automatically loses his taste for pale things. Very important. He loses taste for pale things. हम लोग मटेरियली हम लोग उस चीज के पीछे कई बार कई लोगों को मैं देखा हूँ they pretend to enjoy material things but actually in the heart of heart अगर आप मन से पूछो ना मुझे मजा 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 नहीं आता बट क्या है मेरा सोसाइटी मेरा क्लब मेरा जो ग्रुप है उनके साथ रहने के लिए आई प्रिटेंड एज इफ आई एम एंजॉइंग इट एंड इट इज वेरी कॉमन शायद आप लोगों के साथ भी हुआ हो but when it comes to Krishna consciousness you don't have to pretend you will really enjoy because you are eating a sattvic bhojan which is nourishing not only your body it nourishes your mind it nourishes your soul also. Okay, with this we would like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, comments can ask. किसी का कोई प्रश्न